औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स पार्ट 2 का पढ़ेंगे। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नायाब रज़ा बुखारी। सॉरी। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका जनरल सर्वे आर दी ह्यूमन स्केलेटन है, ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन है। तो इस स्केलेटन सर्वे इज द सीरीज ऑफ एक्स-रेज व्हिच इंक्लूड एन एंटायर skeleton. Skeleton survey may be recorded for the variety of the reason in the children in adults. In general way, they used to identify the focal or the widespread abnormalities of the skeleton. हम बेसिकली ये एक सीरीज एक्सरेज का करते हैं जिसके अंदर हम पूरे स्केलेटन की एक्सरेज करते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि हम अडल्ट के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ को जो बड़े लेवल पे या हम फोकल लेवल पे जो हम करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना हमारा मकसद होता है। Purpose of the test. A skeleton survey may be performed to investigate known as suspected physical abuse in the children, to look the congenital abnormalities of the skeleton, or look for the bone disease in the patient with known as the suspected cancer. Skeleton survey are often used in adults with the suspected multiple myelomas to look the bone involvement. अच्छा, इस टेस्ट का मकसद ये होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फिजिकल एब्यूज जो सस्पेक्टेड होता है चिल्ड्रन के अंदर, या कोई ऐसी डिजीज जो उनको कॉन्जेंटल हो स्केलेटन की, या हम किसी बोन्स की ऐसी डिजीज को देखना चाहते हैं जो सस्पेक्टेड हो, जैसे लाइक कैंसर है। ठीक है, तो स्केलेटन सर्वे जो है ऑफन यूज इन अडल्ट विद द सस्पेक्टेड मल्टीपल मायोलोमास टू लुक फॉर द बोन इन्वॉल्वमेंट। बोन इन्वॉल्वमेंट के मल्टीपल मायोलोमास, मसल्स के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन या मसल्स के ऊपर कोई ऐसा बना हुआ मैस, उसको देखने के लिए हम इसको करते हैं। अच्छा, नोट क्या है, बी केयरफुल not to confuse skeleton survey with the bone scintigraphic or the bone scan के साथ हमने इसको मिक्स नहीं करना। This is the different test that use the small amount of the injected radio tracers to create image of the skeleton. हम ये डिफरेंट तरीके से टेस्ट होता है जिसके अंदर हम इंजेक्टर ऐड करते हैं जो रेडियो ट्रेसर्स बेसिकली होते हैं, और वो स्केलेटन को प्रोमिनेंट इमेज को शो करते हैं। लाइक स्केलेटन सर्वे बोन साइंटिफिक Scintigraphy can be used to detect the involvement of the bones by the cancers, infections, or the trauma. However, it is the more complex test. It is used to specific situations like the X-rays to be of the bones would not be surface. अगर हमें बोन के एक्सरे से पता नहीं चल रहा तो फिर हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका हम नाम देते हैं जी कि हम बोन्स साइंटिग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, whole body CT, MRI, PET, CT, sensitive test of the detection of bone involved be certain type of the cancer. These examinations are the most costly and the time consuming than and the X-ray skeleton survey, but may also find abnormality that skeleton survey would miss. Your healthcare provider will choose the best study based on your specific clinical situation and the usual practice of this situation. Cost and availability of the image and the modalities may also factor into the disease. Feel free to ask your healthcare provider why one diagnosed test will be chosen over the other. अच्छा, ये एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है और इसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो आप बड़े फ्रीली अपने कंसल्टेंट से, अपने फिजिशियन से ये पूछ सकते हैं कि वो आपका टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या इसकी ज़रूरत है। रिस्क एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशन। Any images study which use X-rays involve the radiation exposure. A complete skeleton survey may acquire around 20 X-rays and associate with the moderate radiation dose. Moderate radiation dose में हमें 20 X-rays चाहिए होते हैं। Overall, there are low risk of the adverse health effect related to the radiation exposure one skeleton survey. Nevertheless, it is wise to keep the radiation dose as low as possible, using only what is necessary to answer the medical questions. Certain populations, such as the children and the pregnant women, are more radiation sensitive and they require special cautions. ठीक है,
तो हमें ये भी देखना चाहिए कि चिल्ड्रन के अंदर और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है आपके इस चीज़ से, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम एक्सरेज वगैरह जो हम कर रहे होते हैं उससे उनको बहुत को मतलब लाइक उनकी सेंसिटिव होती हैं, वो सेंसिटिव टोन होती हैं, तो वो हमें इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ही बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से करने से पहले हमें योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ऑर्डर स्केलेटन सर्वे पार्ट ऑफ द evaluation of the some condition that is susceptible to involve the bone. If, for example, healthcare providers suspect that your children may suffer from the congenital syndrome, she may order a skeletal survey to look on the abnormality, which may help the confirm diagnostic or determine the extent of the disease. In adult, abnormalities blood tests may include indicate presence of the certain cancers such as the multiple myelomas and the skeletal surface before perform the establish whether they are the involvement in the bone. Information help determine the prognosis and the glide treatment. अच्छा, अब ये सारी चीजें जो आपको बता रहा है इसमें बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बिफोर द टेस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं वो आपके कैंसर के रिलेटेड है या कुछ उससे हम जो रेडियोग्राफिक देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ आपकी वायरोलॉजी पे भी है करना होगा, हमें आपकी सीरोलॉजी पे भी काम करना होगा, हेमाटोलॉजी पे भी काम करना होगा, सारी चीजें कॉम्बिनेशन फॉर्म में चलेंगी। Often at the emergency department, the children presents with a traumatic injury, some element of the history, physical examination जरूरी है, radiographic evaluation भी जरूरी है, suspected trauma accident देखने के लिए skeleton service में भी order to look the evidence of their injuries by in case of the suspension abuse, कि कितना उसका जो है वो अब्यूज हुआ है, कितना उसका नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब आप बात करते हैं टाइमिंग की। अलॉट्स एट लीस्ट एन और फॉर द टेस्ट टिपिकल स्कैटर सर्वे कंसिस्ट ऑफ द 20 इंडिविजुअल एक्स-रेज। हमें एक तो 20 एक्स-रेज चाहिए होंगे, इसके लिए हमें एक कोई घंटा चाहिए होगा। ऑब्टेनिंग द रेडियोग्राफिक विल टेक अबाउट 25 to 40 minutes ले जाते हैं। यू विल बी नीड टू चेक इन द चेंज इनटू द गाउन, और इसके अलावा हमारे आफ्टर द टेस्ट देन यू विल बी एबल टू गो होम, द इमेज विल बी सेंट टू द रेडियोग्राफर और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंटरप्रिटेशन। द रिजल्ट आर ऑफन अवेलेबल विद इन 1 or 2 बिजनेस डेज। आपका टेस्ट का टाइम आपने उनको तकरीबन 1 घंटा बताना है, उसमें आपने उनको थोड़ा सा गाइड करना है कि हम 20 से ज़्यादा एक्सरेज आपके मुख्तलिफ पोजीशन के अंदर लेंगे। अच्छा, ऑब्टेनिंग रेडियोग्राफिक टेक करने में हमें तकरीबन लग जाएगा 25 से 40 मिनट का टाइम दरकार होगा। जब टेस्ट हो जाए तो आप घर उनको कहना है कि आप घर जा सकते हैं। आपको ये रेडियोग्राफिक जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको सेंड कर दिया जाएगा इंटरप्रिटेशन के लिए। वो एक पेपर बना के आपको सारी प्रेडिक्शन देंगे और इसके रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको वर्किंग डेज के 2 डेज के अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोकेशन से देखेंगे कि आगे हमने मजीद फर्दर क्या पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लोकेशन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।